So what DEO is, it's data entry operator. From data entry operator to become the CEO of the organization. जब ट्रेड इंडिया शुरू हुआ था तो इनिशियल थॉट क्या था? जो इम्पोर्टर्स थे यूएस के, वो उनको आके पूछते थे कि मेरे को ना हैंडीक्राफ्ट खरीदना है, ये इंडिया में कहाँ मिलेगा, लेदर गुड्स खरीदते कहाँ मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होता है स्पेशली एसएमई के अंदर, हाउ यू हैव फुलफिल दैट गैप एंड आपने वो कैसे गैप को ब्रिज किया? हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, हमने बंदे हायर करे और हम एसएमईज के ऑफिस पे जाकर ट्रेन करते थे कैसे डिजिटली आपको हेल्प कर सकता है। अगर मैं एक एसएमई हूँ और मैं अपने आप को लिस्ट करता हूँ उसके अंदर, तो मेरे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एसएमईज वो जो रिलक्टेंट करता है प्राइस देने में, प्रोडक्ट प्राइस, नहीं मैं प्राइस दे दूंगा ना, मेरा कंपटीशन उसको देख लेगा। मोस्ट ऑफ द 99% एसएमईज के बाद आज की डेट में जीमेल आईडी। एज ए बायर जब मैं कुछ ढूंढता हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिले। तो ट्रेड इंडिया ने आपको लीड दे भी दिया और अगर आपने लीड पर रिस्पॉन्ड करने में 2 दिन लगा दिए तो ऑब्वियसली 4 लोग पहले करके उसको क्लोज कर चुके होंगे। तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ ट्रस्टेड सेलर है उनके लिस्टिंग में, तो पहले ट्राई करें उसको कनेक्ट करें। तो इफ यू सी कि अगर रेटिंग बहुत अच्छा है तो ट्राई करें उसको कॉन्टैक्ट। व्हाट आर द बिगेस्ट हर्डल्स प्रिवेंटिंग इंडियन एसएमईज फ्रॉम फुल्ली अडॉप्टिंग डिजिटल रेवोल्यूशन? प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक काफ़ी चेंज हो चुका है, बिकॉज पैंडेमिक में डिजिटल फर्स्ट अप्रोच था, अगर नहीं थे आपका बिजनेस ही क्लोज हो रहा है। How do you see that this AI will impact this ecosystem and how do you intend to leverage out of it? आपका ये प्रोडक्ट है तो अगर आपने स्पेसिफिकेशन नहीं है तो रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन ये हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ प्रोडक्ट है। So first of all, thank you sir for sparing your time and coming and joining us for this podcast. And so today we have a lot to extract from you. So we'll be firing questions on you and we'll see that how much I can extract from you for my viewers. And since you belong to you are working so closely with SME and our maximum our audience is SME only. So I think more you will give is, I think it will be less for us because the need for SME is too much. Yeah. So before I think go into other deeper question, it's been now 2 decades for you. You've been with Trade India. Yeah. So can you just take us to walk over the entire journey, how it started, how it has been evolving, and what are your next milestone, what are your next targets? That would be great. Okay. First of all, Deepak, thanks for giving this opportunity, this platform to share my views. I always believe that any interaction is a learning interaction. Maybe my journey might encourage not only the SMEs but the youth also there, that no small job is you should always take the challenges, and there's nothing called a small job or a big job. Why I say this, I always define my journey from DEO to CEO. Okay. So what DEO is, right. It's data entry operator. Okay. From data entry operator to become the CEO of the organization. I always define it other way around, is from nowhere to somewhere. Right. Because once I did my physics honors, and after doing that, I did my electronic commerce, and I realized that what is the next. You as a when you complete your education, you always aspire for to become big, right? Right. To start my journey, basically after completing my education, it's everybody thinks like to aspire for a bigger job, to become something, start something from the starts itself. But from here, my career started from DEO. I always say that DEO to CEO of the organization, right? From data entry operator to becoming the CEO of the organization last 22 years. Right. It has been challenging, but very rewarding as well. It's like working at different verticals in the organization, building the team. We were hardly around 20-25 people team that time when I joined this company. And the most challenging thing which had happened was when I was heading the digital head of TradeIndia.com, and then suddenly one day my founder said, hey, tomorrow, from tomorrow we promote you and you become the CEO of the organization. And that day itself, I thought that what is that we need to do to run the business, right? And I give all credit to my founder, because just because he thought that I'm responsible for that, the growth of the organization. Second, he always encouraged me, to take challenges. Right. Just imagine a digital head running the operations of the whole organization. Right. And he always given me that freedom to do mistakes. That's what I tell all the entrepreneurs, that if you have hired a leader, right, give them that liberty to do mistakes, because mistakes helps you to learn and grow faster. And after I almost became the CEO for almost 3 years. In 2020, I became the CEO of the organization, and all knows that 2020, what a year,
Pandemic hit that exactly at that time. I still remember March 30th was my birthday, and I know I got promoted on almost first second of April, and pandemic was there, you know. And I was just thinking whether I should be very happy in this promotion or curse my fate that, hey, you are responsible for the second your employees, you know, almost 2,000 plus people team, 10,000 families to run the family. And everybody didn't knew what is going to happen in next 6 months or 1 year or so, right? And that's where the challenge came in, you know. That's where the challenge came in. And but thanks to my team, it's like, you know, the way the Trade India spirit is all about the team. Thanks to my dedicated team and the leadership which we have, we all set together, build the strategy, and happy to share, you know, pandemic was a blessing in disguise for us. We grew faster. We did almost more than 20-25% of profitability, and we scaled that time. I had almost 700 people, you know, during pandemic, you know. So I think this has been a journey to start with, you know, from my journey perspective. Yeah. Right. Great. So जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और ओवर द पीरियड वो इवॉल्व होता है एंड यू बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक यू इवॉल्व योर मॉडल आल्सो. तो जब ट्रेड इंडिया शुरू हुआ था तो इनिशियल थॉट क्या था? तो इनिशियली जो ट्रेड इंडिया का कॉन्सेप्ट कैसे आया वो समझते हैं कि हमारा जो फाउंडर था, यू नो, वो यूएस में जॉब कर रहे थे. एंड वहाँ पे जब यूएस में जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स थे यूएस के, वो उनको आके पूछते थे कि मेरे को ना हैंडीक्राफ्ट खरीदना है, मेरे को ऑटो पार्ट्स खरीदने हैं, या मेरे को, यू नो, कारपेट्स खरीदने हैं, ये इंडिया में कहाँ मिलेगा, लेदर गुड्स खरीदने कहाँ मिलेगा. जब ये बहुत सारे क्वेरीज आने, देयर वाज कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिल पाया, है ना. दैट इज़ वेयर हमारे जो फाउंडर ने स्टार्ट किया एक्सपोर्टर येलो पेजेस. आइडिया था कि हम कैसे एक्सपोर्टर्स और ये इम्पोर्टर्स है, यू नो, आउटसाइड इंडिया, इसको कनेक्ट करें, यू नो. और एक्सपोर्ट येलो पेज जो एक ऐसा मीडियम था, एंड हमने क्या किया कि जितने भी एम्बेसीज है, जितने भी होटल्स है, ये सारे जगह एक्सपोर्टर येलो पेजेस को प्लेस किया ताकि ये बहुत ईजी हो जाए इम्पोर्टर्स से कनेक्ट करें. बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि टेक्नोलॉजीज आने लगे, ग्रेजुअली यूज़र का बिहेवियर चेंज होने लग गया. तो वो इतना मोटे बुक होते थे एक्सपोर्टर येलो पेजेस, उसको कैरी करने में लोगों को लगता था कि कैसे कैरी करे. फिर लैपटॉप का टाइम आना स्टार्ट हुआ या सीडी रोम, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्टर येलो पेजेस को सीडी रोम में देना स्टार्ट किया. एंड 1996 में हमने डिसाइड किया कि जब ये .com बूम स्टार्ट हो गया, यू नो, हॉटमेल स्टार्ट हुए, यू नो, तब हमने भी सोचा कि क्या हम इसको ऑफलाइन को ऑनलाइन ले जा सकते हैं ना. उसी समय हमारा ये है ट्रेड इंडिया. वी स्टार्टेड ट्रेड इंडिया. ओके, ट्रेड इंडिया को हमने पहले इस जो एक्सपोर्टर येलो पेजेस था इसको हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया. एंड आइडिया था कि खाली एक्सपोर्टर्स को हेल्प करें, यू नो. बट ग्रेजुअली हमने देखा कि क्या डोमेस्टिक मार्केट भी इतना बड़ा है, यू नो. तो वो जब हमने ये देखा कि बहुत सारे क्वेरीज आने लग गए प्लेटफॉर्म में, है ना. बट बहुत ही डिफरेंट स्ट्रगल था, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो. दीपक की स्ट्रगल कैसे था कि उस समय ईमेल्स को यूज़ नहीं करते थे, किसी को लिटरेसी नहीं था ईमेल. तो लोग हमारे प्लेटफॉर्म में फैक्स हुआ करता था, तो लोग फैक्स करते थे रिक्वायरमेंट को, फिर हम सेलर को भेजते थे कि देखो, यू नो, इस इंक्वायरी को रिवर्ट करो. बट थैंक्स टू कि जो Bazi.com, इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आए, उसने धीरे धीरे, eBay आया उस समय, तो उसने धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टार्ट किया कि डिजिटली कैसे जाना है. और रेडिफ मेल आया, याहू आया, तो इन्होंने क्या किया, ईमेल स्टार्ट कर दिया. चैट लेयर बन गया वहाँ पर कि रेडिफ में चैट कर सकते थे, यू नो, याहू में चैट कर सकते थे, याहू मैसेंजर आया. तो उसी समय हमने भी क्या पिवट किया कि हम डिजिटली करेंगे. हम चैट एक सिस्टम बना देते हैं कि बायर सेलर चैट कर पाया, यू नो. ईमेल तो नहीं देख पाएगा, बट क्या चैट कर पाएगा. तो धीरे धीरे हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गए. फिर हमने स्टार्ट किया कि चलो इनके लिए खाली प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, इनको हम कैटलॉगिंग भी देते हैं. तो हमने उनको कैटलॉग बनाना स्टार्ट किया. उनके प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट को हमने वेबसाइट में लेके आए, उनके पर्सनल माइक्रो साइट्स बनाए, और उसी तरह से हमने स्टार्ट किया उनको प्रमोट करना. एंड एक एरिया दिया जहाँ पर वो खुद आके बायर और सेलर का रिप्लाई कर सके. तो आइडिया था कि कैसे हम SME को डिजिटली सक्षम बनाएं, यू नो. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होता है स्पेशली SME के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बड़ा वो स्लो होता है. मतलब जो पहले टेक्नोलॉजी आती है वो टॉप पे आएगी, फिर वो नीचे आती है, उसमें आती है. सो आपने कैसे इस चैलेंज को कैसे इसको एड्रेस किया कि जो कि आपका तो पूरा प्रोडक्ट ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है, राइट? सो हाउ यू हैव फुलफिल्ड दैट गैप एंड आपने वो कैसे गैप को ब्रिज किया? जब हमने ये स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म, तो
वी यूज्ड टू गो टू SMBs, राइट, कि हम आपको बिजनेस को डिजिटल लेके जाने चाह रहे हैं. Right. तो दैट चेंज, रजिस्टरिंग टू चेंज था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, है ना, कि नहीं हमारा बिजनेस सही चल रहा है. हम रेफरल से बाहर आ जाता है, और डिजिटल तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन कौन इंक्वायरी भेजेगा, ट्रस्ट इशू है ना. तो व्हाट वी स्टार्टेड इज, हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, हमने बंदे हायर करे, और हम SMEs के ऑफिस पे जाकर ट्रेन करते थे कि कैसे डिजिटली आपको हेल्प कर सकता है. दैट्स द फर्स्ट थिंग हमने स्टार्ट किया. सेकेंड हमने स्टार्ट किया कि हमने जो कम्युनिकेशन वाज वेरी क्रिटिकल, राइट, वहाँ पर कि बायर सेलर कम्युनिकेशन हो, और वहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी देना स्टार्ट किया. जैसे कि वी स्टार्टेड विद @tradinda.com, क्योंकि आपको कोई ईमेल आईडी यूज़ नहीं करना, आप इसी को कम्युनिकेशन, उनको हमने सिखाया कि ईमेल आईडी पे कैसे रिप्लाई करना है, एंड हमने टेम्पलेट क्रिएट कर दिए कि प्रपोजल का टेम्पलेट. सो इट वाज ऑल फिक्स्ड, तो उससे उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया कि रिप्लाई करने में, कम्युनिकेशन का. सेकेंड आते हैं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, राइट, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन ऐसा था नहीं, बहुत ही प्रॉब्लम था. तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी सपोर्ट किया कि हमने पार्टनर्स करे, जैसे कि जिस समय इंटरनेट प्रोवाइडर्स थे, चाहे वो एयरटेल थे, जो भी प्रोवाइडर्स थे उनसे पार्टनर किए, वहाँ के लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनर किए, ताकि हम वो इंटरनेट भी वहाँ तक पहुँचा पाए, right? It was not selling trade India, it was selling internet, email. Yeah, everything, because our focus was all digital, Right. digital. And that's the second part of it. And third is, we created a service team, एक सर्विस टीम बनाया, जो सर्विस टीम एवरी मंथ जा रहा था, कस्टमर से मिल रहा था, कस्टमर को हैंड होल्डिंग कर रहा था. इट वॉज लाइक हैंड होल्डिंग लिटरली, राइट. तो दैट वॉज द थर्ड थिंग विच डिड. एंड फोर्थ वी डिड इज कॉल्ड अ नॉलेज शेयरिंग इवेंट. हम एक इवेंट में बुलाते थे, और इवेंट में बुला के हम उनको नॉलेज देते थे कि आपको डिजिटल बिजनेस करने के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, और उनके स्किल गैप को थोड़ा फुलफिल करने का, गैप को फिल करने का कोशिश करते थे. तो दीज आर फ्यू थिंग्स वी डिड, एंड थैंकफुली वी वर एबल टू सक्सीड देयर. Yeah. So I think if you can just brief right now where Trade India is today in terms of volumes, in terms of transaction, in terms of buyer seller you have, and how many transactions you do in a day, that would be great to understand. So Deepak, as we speak, we have around 11 million SMBs जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. Great, right. ऑलमोस्ट मोर देन 3 लाख रिक्वायरमेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म में एवरी डे आता है. Right. Okay. Unique visitors is more than 3.5 lakh unique visitors. They come on the platform every day. Right. Okay. So far as volume is concerned, almost 1 crore प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है. Right. 25 लाख सेलर्स हमारे प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है आज के डेट में. वी आर प्रेजेंट अराउंड 41 सिटीज़ इन इंडिया. सारे 41 सिटीज़ में जहाँ पे डिजिटल हब, मतलब इंडस्ट्रियल हब है. Right. चाहे आप कोयम्बतूर देखो, इंदौर, भोपाल, जहाँ इंडस्ट्रियल हब्स एंड SMEs बैठा हुआ है, वहाँ पर हमारे ऑफिसेस है. और वहाँ पर वी हैव आवर टीम, जहाँ के वहाँ पर जाकर कस्टमर से मिल के उनको हैंड होल्डिंग करें. ओके. When if you talk about the size of the company, like I said, we are a 33-year-old company. 33 साल हो गए इस बिजनेस में. एंड ऑफ कोर्स प्लानिंग है कि हम कैसे इसको और इंडिया में और एक्सपैंड करें. लाइक 41 ऑफिसेज है. वी आर प्लानिंग टू डबल इट डाउन फ्रॉम द ऑफिसेज पर्सपेक्टिव, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द कॉल सेंटर. बहुत ही जल्दी हम एक नोएडा में भी काफ़ी बड़े कॉल सेंटर्स ओपन करने वाले हैं. आइडिया है कि कैसे हम स्मॉलर सिटीज़, छोटे सिटीज़ है, Tier 3, Tier 4, बिकॉज डिजिटल ने, जो इंटरनेट ने क्या कर दिया कि बॉर्डरलेस कर दिया. देयर इज़ नो बैरियर नाउ. एक जो SME पानीपत में बैठा है, अम्बाला में बैठा है, या भदोही में बैठा है, या जिस शहर से मैं हूँ सिलीगुड़ी में बैठा है ना, अगर उसका एस्पिरेशन ग्लोबल है तो वो इजीली आज के डेट पे कर सकता है. सो दैट्स वेयर वी आर टुडे फ्रॉम द नंबर पर्सपेक्टिव. तो मेरा अगला क्वेश्चन इज फ्रॉम SME साइड ओनली. जैसे बहुत लोगों से हम मिलते हैं, तो कई लोगों का ये होता है कि उनको ROI नहीं मिलती. तो आई एम श्योर कि वो ROI इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियाँ करते होंगे. तो आज ये मौका मिला तो हम आपसे पूछते हैं कि आप, अगर मैं एक SME हूँ और मैं अपने आप को लिस्ट करता हूँ उसके अंदर, तो मेरे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मैं उस प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूँ. देखो, ग्रेट क्वेश्चन. इसलिए ग्रेट क्वेश्चन कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स के चैलेंजेस हैं. कस्टमर क्या करते हैं, दे पे, आपको पे कर देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि मैंने पे कर दिया है, सब कुछ आपको बनाना है. कैटलॉगिंग भी आपको बनाना है, फ़ोटो भी आपको देना है, कंटेंट भी आपको लिखना है, स्पेसिफिकेशन भी आपको लिखना है. बट इट शुड बी अदर वे अराउंड, राइट, क्योंकि मेरे को तो उस प्रोडक्ट का कुछ नॉलेज ही नहीं है. जब तक आप मेरे को बताएंगे नहीं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, राइट. ऑफ कोर्स आज के डेट में AI है, AI बहुत सारी चीज़ें हेल्प करता है. तो फर्स्ट जो डिजिटल में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट. और आज की डेट में आप और मैं भी जब बाय करते हैं, वी बाय फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म, क्या वहाँ पर
क्या क्या जीम है, यू नो, तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं। उसी तरह से बायर भी आज के डेट में डिजिटली वो ये देखते हैं इमेज के स्पेसिफिकेशंस क्या है, यू नो, दैट्स द सेकंड इम्पॉर्टेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज द एस्टिमेट्स, वो जो रिलक्टेंट करता है प्राइस देने में, प्रोडक्ट प्राइस, नहीं मैं प्राइस दे दूंगा ना, मेरा कंपटीशन उसको देख लेगा कि मैं किस प्राइस में बेच रहा हूँ। बट आज के डेट में अगर होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री आप देखेंगे ये क्यों बढ़ा, कंपटीशन इतना सारा क्यों बढ़ रहा है। इवन इफ यू सी ऑल द B2C साइट्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह देख रहे हैं, वो प्राइस दिखा रहा है तभी बिक रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। तो आप उनको ये होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रखे, यू नो, प्राइस है। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें ध्यान दिया, यू नो, देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो, सो द अदर टूल्स है जो आई वुड लाइक टू ऐड दोज टूल्स ऑल्सो, यू नो, कि SME अगर आज देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द 99% SMEs के बाद आज के डेट में Gmail ID है। क्यों? क्योंकि उन लोग को ईजी है कि चलो Gmail में फ्री से मिल गया। बट जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहा है आज के डेट में, डिजिटल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो आई वुड नॉट से खाली फ्री ईमेल आईडी से मैक्सिमम होता है, राइट। ट्रस्ट में तो ट्रस्ट इशू होता है। बट इमेजिन कीजिए कि आपने एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी ले लिया, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ sandeep.com, राइट। तो sc@sandeep.com, अगर आप अपने बायर को भी अपने इस प्रोफेशनल ईमेल आईडी से भेजेंगे तो उसको एक अलग, यू नो, कंपनी को देखकर एक अलग तरीके से देखेगा कि अच्छा ये कंपनी अच्छा कंपनी, एक कंपनी थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर है, दूसरा एक ट्रस्ट बनेगा कि इससे मैं बिजनेस कर सकता हूँ। बट अगर वही ईमेल एक Gmail से जाएगा, मे बी द बायर माइट नॉट ट्रस्ट, Gmail से आपको हर तरीके के फिशिंग मेल आ रहा है, स्कैम मेल्स आ रहे हैं, लॉट ऑफ मेल्स आ रहे हैं, राइट। सो ये दूसरा एक, यू नो, वे है, दूसरा तरीका है। दिस इज अ वे, दैट स्मॉल थिंग विच वी कैन बिल्ड ट्रस्ट। थर्ड इज जो SME को देखना चाहिए कि बी इन मार्केट प्लेसेस, लाइक चाहे वो ट्रेड इंडिया हो और कोई भी मार्केट प्लेसेस, होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव एन अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अमेजन में जाएंगे, अमेजन में कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, आप देखते हैं सेलर कौन है, क्यों नहीं देखते? कोई प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल है, प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल है, राइट। अगर, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर अमेजन में ये लिस्टेड है तो ये जेन्युइन सेलर है, और चाहे वो सेलर बहुत छोटा हो, बहुत छोटे शहर में बैठा हो, तब भी हम नहीं देखते। उसी तरह से मार्केट प्लेसेस में रहने से उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अच्छा ये जो सेलर है कि मैं ट्रेड इंडिया में लिस्टेड हूँ, और ट्रेड इंडिया एक ब्रांड है, यू नो, विच इज़ हेल्पिंग SMEs। ये खाली आपको इंडियन, यू नो, बायर्स से नहीं, इवन यू नो बायर्स हु आर आउटसाइड इंडिया, वो भी ट्रस्ट करेंगे। अच्छा ट्रेड इंडिया में लिस्टेड है तो ये मतलब जेन्युइन कंपनी है, यू नो, वेरीफाइड कंपनी है। सो ये कुछ चीज़ें अगर ध्यान दे तो आई थिंक ऑनलाइन बिजनेस करने में इनको काफ़ी ईजी होगा। ग्रेट। सो इफ आई हैव टू सम अप, वन इज द विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर कैटलॉग, योर product images, your specification on about the product. Yeah. Second is your openness for transparency in pricing. Yeah. And third is personal branding, or say business branding, where you create some trust by having your business domain and things like that. Yeah, yeah. And fourth, you said that you should also be listed on other platform also, because that gives you more credibility. More credibility, absolutely. Great. I think बड़ा बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन I think लोग उसको उस पर केयर नहीं करते उस चीज़ों की, और I think बाद में बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था पर मेरे को रिटर्न नहीं मिला। Because you have to be responsive, you have to understand that trick of the trade also. Yes, absolutely. And there are small basics, you know, it's just like, you know, एक एलिमेंट लगता है मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, is I think their speed of response. Because जब मैं एज ए बायर जब मैं कुछ ढूंढता हूँ तो मैं चाहता हूँ मुझे रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिले। तो अगर ट्रेड इंडिया ने आपको लीड दे भी दिया, और अगर आपने लीड पर रिस्पॉन्ड करने में 2 दिन लगा दिए, तो ऑब्वियसली 4 लोग पहले करके उसको क्लोज कर चुके होंगे, और आप फिर खाली कोटेशन दे रहे होगे शायद। इनफैक्ट दीपक, हमने ना इसको भी एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें किया है ना, कि बायर सेलर मैच मेकिंग और फास्टर हो। सबसे पहले तो हमने ये किया है कि हमने जो अलर्ट है, जो भी इंक्वायरी आता है, उसका अलर्ट हमने व्हाट्सएप में इमीडिएटली दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप का ओपन रेट इज़ नियरली 75% ना, बोथ साइड। अगर यहाँ पर बायर साइड देखेंगे, सेलर देखेंगे। एक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी बनाया है। टेक्नोलॉजी क्या बनाया, अगर आपने बायर हो और आपने दो सेलर को कनेक्ट कर रहे हो ना, तो हम वी जनरेट इंस्टेंट कॉल। ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है जो इंस्टेंट कॉल सेलर के साथ करा देता है। बायर सेलर कैन कनेक्ट ऑन कॉल, बिकॉज टू एड्रेस दिस, बिकॉज आज के डेट में बायर जो है वो उनके पास पेशेंस नहीं है, राइट। आज अगर मेरे प्लेटफॉर्म में आया, अगर यहाँ मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में जाऊँगे, दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं तो मैं किसी और जगह सर्च करके मैं किसी थर्ड सेलर को कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यू राइटली सेड दैट रिस्पॉन्स टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है टुडे टू जनरेट दैट ROI। सो अगला क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम अ बायर साइड,
Like, if I'm as a buyer, if I'm browsing through Trade India, what strategy should I use to optimum utilization of that platform so that I get best product, best quality and best price? तो वो मेरे लिए क्या strategy होनी चाहिए अगर मैं बायर की तरफ उसको एज ए यूज़ करता हूँ? अगर आप बाय की तरह देखते हो तो पहले तो आप ये देख सकते हो कि हमारे जैसे प्लेटफॉर्म ने काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं कि आप लोकली सर्च कर सकते हो, राइट? अगर आप इंदौर में बैठे हो तो आप पहले देखो कि इंदौर का सेलर हो सकता है, तो इसमें आपके लिए क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है, और आपके पास इंटरेक्शन फास्टर होगा फ्रॉम बिकॉज आप सेम सिटी पे हो, ठीक है। सेकंड, आपको ये देखना चाहिए कि हमने काफ़ी सारे वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ट्रस्टेड सेलर, है ना। हमने क्या किया कि हमने टाई अप किया हुआ है डिफरेंट थर्ड पार्टी एजेंसी के साथ, जो इस तरह से रेटिंग देता है कि ये जो सेलर है ट्रस्टेड है। उन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया है, तो आपको देखना चाहिए कि हाँ ट्रस्टेड सेलर है उनके लिस्टिंग में, तो पहले ट्राई करें उसको कनेक्ट करें। थर्ड, आप देखिए कि वी हैव अ रेटिंग सिस्टम, बायर रेटिंग, सेलर रेटिंग, तो वहाँ पर बायर लोगों ने सेलर्स को रेटिंग दिया हुआ है। तो इफ़ यू सी कि अगर रेटिंग बहुत अच्छा है तो ट्राई करें, उसको कांटेक्ट करें। देन कम्स टू द रिस्पॉन्स रेट, सो वी हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि ये सेलर कितने जल्दी रिस्पॉन्स करता है, तो आप उनको अगर जल्दी कांटेक्ट करें तो वो दैट इज। फिफ्थ इज़ ऑनलाइन, तो ये भी दिखाता है हमारे प्लेटफॉर्म में कि ये सेलर अभी ऑनलाइन है। सो अगर आपको वो दिख जाए कि ग्रीन डॉट है, ऑनलाइन है, तो आप इमीडिएटली उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बायर हैज़ टू लुक एट दैट, एक एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट है कि कोई भी सेलर के साथ अगर आप बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एक हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ, बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स द फर्स्ट हर्डल इज़, आई वुड ऑलवेज से रेजिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा बिज़नेस सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मेरे को डिजिटली क्यों जाना है, डिजिटल में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को स्किल गैप है, मेरे को सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस टू चेंज। एंड बिकॉज द चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, अब क्या हो कि एंटरप्रेन्योर्स भी चेंज हो रहे हैं, द न्यू चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज के डेट में सोशल मीडिया यूज़र है, राइट। तो वहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है उनके बिजनेस में भी, वहाँ पर एक गैप है, दैट गैप इज़ देयर। तो कभी अगर SME में क्या होता है कि फादर एंड सन काइंड ऑफ एग्जाम्पल, तो फादर इज़ ऑलवेज सेइंग नहीं नहीं ये ट्रेडिशनल वे से करते हैं, सन नहीं मतलब ज़माना चेंज हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो दैट इज़ ऑलवेज देयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। Second is digital literacy also, right? When I say digital literacy की, जैसे give an example की, email खरीदना, बहुत ही बड़ा cost, right? Hardly cost 2,000 rupees, not more than that, right? एंड कैसे वेबसाइट देखना चाहिए, कैसे वेबसाइट को अपडेट करना चाहिए अगर वेबसाइट है, फोटोग्राफ्स को कैसे अपडेट करना चाहिए, प्राइस क्यों इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह के डिजिटल टूल्स यूज़ करना चाहिए ना, दैट फ्रॉम द डिजिटल लिटरेसी। थर्ड, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से दैट कि जो SMEs है उनके लिए क्या क्या हैंड टू माउथ होता है, तो उनको ये लगता है कि इसका जो कॉस्ट है ये काफ़ी ह्यूज कॉस्ट होगा, तो वहाँ पर वो ऑलवेज दे लुक आफ्टर कि गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर सकता है क्या, तो हम लोग को गवर्नमेंट सपोर्ट करके कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या होगा, राइट। आई थिंक दीज आर द मेजर 3 चैलेंजेस आई वुड से आज के डेट में SME को है। बट स्टिल प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक ये काफ़ी चेंज हो चुका है, बिकॉज पैंडेमिक में डिजिटल फर्स्ट अप्रोच था, अगर नहीं थे तो आपका आपका बिजनेस ही क्लोज हो रहा है ना। दिस हैज ग्रेजुअली चेंज, बट ये चैलेंजेस अभी भी है छोटे शहर। मुझे लगता है कि एक और जो चैलेंज अब बढ़ गया है कि पहले जो एवोल्यूशन की स्पीड थी वो एक स्पीड थी, विद AI कमिंग इन आई थिंक वो अब 100x हो गई है। सो अगर पहले आपने 4 साल लगाए, 5 साल लगाए एक चीज़ को अडॉप्ट करने में, आई थिंक आप वो महीनों में अगर आपने नहीं करेंगे तो आई थिंक यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सी of course AI is a big word today, AI ML इतना buzzword है, but I think from the SMA perspective, अब अभी भी वो बहुत ही small चीज़ें देखते हैं, I'll give you add one more point here is, वो लगता है कि मेरा डेटा ना सिक्योर नहीं है, मेरा बायर सिक्योर नहीं है, अगर आपको मैं वेबसाइट बनाने दे दिया तो मेरा बायर सब चला जाएगा, तो आप मेरे बायर को किसी और सेलर को दे दोगे ना, दैट फियर इज़ स्टिल देयर, तो वो लोग बहुत ही डरता है कि नहीं मेरे को बिज़नेस को ऑनलाइन नहीं, आप मेरे डिज़ाइन को किसी और बंदे को दे दोगे, सब जगह डिस्प्ले कर दोगे। अभी भी होता है इफ़ यू गो फ्रॉम द कारपेट इंडस्ट्री, अभी भी वो कहते हैं कि मेरे डिज़ाइन को लॉक करके रख दो, तब तक वो कोई बंदा लॉग इन ना करे और मेरे को रिक्वेस्ट ना भेजे कि मेरे को ये प्रोडक्ट का इमेज देखना है, तब तक मैं डिज़ाइन नहीं दिखाऊंगा। So that again, that fear is always there from the data privacy perspective. Okay, the literacy part of it, and I think and it somewhere it's true because काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आज के डेट में, है ना, कि
and wherein that's what there are a lot of data privacy policies जो गवर्नमेंट ने अभी लेके आ गए हैं, है ना. आई थिंक ये सारे पॉलिसीज डेफिनेटली हेल्प करेंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका माइंडसेट भी चेंज होगा. वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा. सर आपने भी काफ़ी प्लेटफॉर्म लॉन्च करे थे, अपना ट्रेड उधार, getdistributor.com, ट्रेड खाता. तो ये सब कैसे पूरे इकोसिस्टम को हेल्प कर रहे हैं और कैसे इसको लोग यूज़ कर रहे हैं और ये कहाँ से आइडिया आते हैं वाले? सो क्या होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्शन है बायर एंड सेलर, है ना. एंड मैं पहले ट्रेड उधार और ट्रेड खाता से स्टार्ट करूँगा कि क्या हुआ कि ड्यूरिंग पैंडमिक वी रीच्ड आउट टू SMBs, राइट. हमने एक सर्वे किया 50,000 SMBs के साथ कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या सपोर्ट की ज़रूरत है ना. तो पहला सपोर्ट उन्होंने बोला था कि मेरे को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, बिकॉज पैंडेमिक में तो चाहिए वैसे भी चाहिए कि हम लोग को आप हेल्प कर सकते. तो सेकंड जो रिक्वेस्ट आया था कि हम कैसे उनको, बिकॉज फिजिकल इन्वॉइसेस बना नहीं सकते थे, तो क्या हम वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं. तो इवन इन दिस 50,000 87% सेड दैट कि हम लोग को यहाँ पर सपोर्ट चाहिए. एंड दैट इज़ वेयर ये 2 प्रोडक्ट का हमने आइडिया आया और हमने उसको बहुत ही स्पीड में बनाया है. व्हेन इट कम्स टू ट्रेड उधार का होल ऑब्जेक्टिव कि हम कैसे SMB के नॉट ओनली वर्किंग कैपिटल लोन बट हम वहाँ पे सोच रहे हैं कि इन्वॉइस फिनेंसिंग, मशीनरी फिनेंसिंग, अगर आपको मशीनरी खरीदना है हम वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करेंगे. और आपके जो ग्रोथ को 2x करने के लिए अगर हम वहाँ एंकर फिनेंसिंग लेके आ रहे हैं जिससे कि आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर पाए ना. एंड आज के डेट में हमने ऑलमोस्ट मोर देन 100 crores डिस्पर्स कर चुके हैं. एंड वी हैव पार्टनर्स इन प्लेस. हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लिया है जहाँ पर आपको विद इन अ सेकेंड वी कैन बी एबल टू से दैट कि आपको लोन कितना दे सकते हैं और कितना एलिजिबल है, राइट. एंड बिकॉज हमारे जो फिनटेक पार्टनर्स है, बैंक्स है, बिकॉज वी आर देयर एज ट्रेड इंडिया पर्सपेक्टिव, तो वो एक ट्रस्ट है कि हाँ इनके कस्टमर्स है जो उसको हम लोन दे रहे हैं, राइट. तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम SMB को कैसे हेल्प करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं इंडियन SMBs को. दैट्स व्हाई. सेकंड आता है ट्रेड खाता. एक तो इन्वॉइस था, पेमेंट कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट था पैंडेमिक में, राइट. तो हमने क्या किया कि इन्वॉइस में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दिया एंड वहाँ पर और एक चीज़ इंटीग्रेट कर दिया, ऑटोमेशन फ्रॉम द कलेक्शन पर्सपेक्टिव, राइट. कि दूसरा चैलेंज SMB का ये है कि उनका जो पैसा कलेक्ट करना उनको पता भी नहीं होता कि किस किस के पास पैसे हैं. अब क्या हुआ, किसी ने लिख के रखा है. वहाँ पर पैंडेमिक में सब जन वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो किससे पैसे कितने लेने हैं ये भी नहीं पता. उसका जो जितने भी जो डायरीज़ है वो ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो ऑफिस जा नहीं पा रहा लॉकडाउन पे, घर पे बैठा हुआ है ना. सो दैट इज दो चैलेंजेस वेयर देयर. दैट सॉल्व द चैलेंज. वी से दैट इन ट्रेड खाता यू कैन अपलोड ऑल योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन क्रिएट अ इन्वॉइस, वहाँ से आप लिंक भेज सकते हैं. इन्वॉइस के साथ वहाँ पर लिंक है, QR कोड है, सब कुछ है, वो पेमेंट कर सकता है ऑनलाइन. प्लस एक रिमाइंडर सिस्टम बना दिया कि आपको अगर 50% पेमेंट आपने ले लिया तो सेकंड 50% आप कब लेना है वो फ्रीक्वेंसी आप कर सकते हैं कि वीकली, मंथली, एवरी डे. तो आप वो रिमाइंडर सेट कर सकते हो व्हाट्सएप में, SMS में, ईमेल पे वो रिमाइंडर जाता रहेगा. तो दैट कलेक्शन ऑल्सो बिकम ईजी, बिकॉज देयर इज अ सर्वे, देयर इज इनफैक्ट वी सेज दैट एंड देयर इज अ रिपोर्ट वी से दैट कि ऑलमोस्ट 15% जो SME का जो पैसा है उनको पता ही नहीं होता कि कब कलेक्ट करना है और वापस ही नहीं आ रहा. एंड दैट इज़ वेयर दिस ट्रेड खाता वाज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अब आते हैं getdistributor.com को, क्योंकि जब हमारे प्लेटफॉर्म में ना जब क्वेरीज आए तो हम लोगों को दिखा कि 10% ऐसे क्वेरीज थे जो कस्टमर किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहा था. ओके. तो हम रियलाइज है कि 10% जो है हमारे जो सेलर्स है, मोस्टली सेलर्स ये कर रहे थे कि उनको खाली बायर का इंक्वायरी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं चाहिए, है ना. एंड हमने सोचा कि इसको कैसे यूज़ किया जाए, इस डेटा को जो 10% मतलब इंक्वायरी जो है वो वेस्ट जा रहा है. देन वी थॉट दैट कैन वी हैव अ प्लेटफॉर्म getdistributor.com. और getdistributor.com में हमने क्या किया, कैटेगरी स्पेसिफिक बनाया जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेरी आ रहा था, राइट. एंड वहाँ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने ऑलमोस्ट वी हैव हेल्प्ड मोर देन 1500 ब्रांड्स टुडे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में पैन इंडिया. ठीक है. तो अगर आप कोई ब्रांड हो और आपको चाहिए कि मिड साइज ब्रांड, नॉट ओनली और बिग साइज ब्रांड, यू हैव एस्पिरेशन कि इंडिया में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, राइट. तो यू कैन कम टू आवर प्लेटफॉर्म, रजिस्टर दे. और हम क्या करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का. हम लोग क्योंकि 11 मिलियन SMBs हैव ऑलरेडी रेज, वी नो कि किस कैटेगरी में कौन डिस्ट्रीब्यूटर है आज के डेट में, राइट. तो हम वी डू दैट मैच मेकिंग यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. ओके. Second, we also help these brands, outside India, okay,
अगर आपको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ठीक है, बिकॉज उनके लिए बहुत ईजी हो जाए, सो दे कैन गो थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. So we get lot of good, I mean, this become a very big, revenue stream for us, within the Trade India ecosystem. GDU is playing a big role from the revenue perspective also. तो इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसे आज अगर आपका मुझे पता नहीं रेवेन्यू कितना कहाँ से आता है, पर अगर जो लगता है मुझे गट फील लगता है कि जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो लीड जनरेशन कि अल्टीमेटली आप लीड्स दे रहे हैं और उसके ऊपर वो ट्रांजेक्शन उसके ऊपर हो रही हैं. एंड देन एक पार्ट है जहाँ पर ये ट्रेड खाता या डिस्ट्रीब्यूटर कॉम या जहाँ फाइनेंस आ रहा है वो उसमें रोल प्ले करता है. बट द वे थिंग्स आर मूविंग नाउ विद हायर डिजिटल अडॉप्शन, विद मोर क्रेडिबिलिटी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, fintech, AI coming in, and so everything is there, right? On a second, right? If I want to buy something and I can trust this distributor, I can trust this product. I have a finance partner available. I have intelligence available to do a validation for me whether it's the right purchase for me, and boom, and I'm there for that. So how does you see that? How will this platform will evolve in next couple of years with all this? Cocktail of I think AI technology and digital thing coming up. So if you see, हमने क्या किया, पहले तो ट्रेड इंडिया जो प्लेटफॉर्म बनाया वो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था. Right. हमने डिस्कवरी से इसको प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बना दिया कि प्राइस डिस्कवरी अगर आप आज भी डेट में कुछ सर्च करेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट का प्राइस दिखेगा. पैरेलली हमने क्या किया, ट्रेड उधार एज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हमने बोला कि इनवॉइस सॉल्यूशन, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, मशीनरी फाइनेंसिंग. Now what we are trying to do is हम इस दो जो प्लेटफॉर्म बन गया इसको हम just we want to connect the dots. Okay, so this price discovery we want to now go to transaction. That is what the big future is, Right. And we have already started seeing the kind of interest, from the buyer and the seller perspective. We are doing some pilot. हमने कुछ pilot कर रहे हैं और रोज ऑर्डर्स आ रहे हैं, right? तो हमने ये सोचा कि कैसे अगर हम ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हम वी विल बी अ फुल फ्लेजेड B2B मार्केट प्लेस विच वेयर द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग. B2B मार्केट प्लेस का एक ही इनसाइट है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है वो हाई होगा, है ना, बिकॉज यहाँ मशीनरी भी बिक रहा है जो 10 लाख का होगा, 15 लाख का होगा, यहाँ पर बैटरी ई रिक्शा भी बिक रहा है, तो जिसका कॉस्ट 2-2.5 लाख, जो ऑनलाइन साइड वो उसमें ट्रांजेक्ट नहीं है. दैट इज़ वेयर ये जो ट्रेड उधार का जो कॉन्सेप्ट है, ये काम है. सो दैट्स व्हाट वी वांट टू स्टिच दिस गैप. सो व्हाट व्हिच वी सी इज हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च करेगा, ट्रेड इंडिया एट द रेट 1000 करोड़. तो ट्रेड इंडिया एट द रेट 1000 करोड़ यही है कि कैसे हम इसको डिस्कवरी को ट्रांजेक्शन पे लेके जाएंगे. दैट द फ्यूचर विच वी आर लुकिंग एट. फैंटास्टिक. आई एम श्योर आई थिंक वी विल मूव टुवर्ड दैट. आपका टिकट साइज, ट्रांजेक्शन साइज विल गो multifold. Generating a lead and then converting into a transaction. I think it's a whole different program. But I think एक जो word आजकल बहुत buzzword है जो आपने बोला अभी AI. How do you see that this AI will impact this ecosystem and how do you intend to leverage out of it? Let me start from the platform perspective. Okay, platform में हमने AI कैसे यूज़ कर रहे हैं. पहले तो हम कर रहे जो आज के डेट में चैलेंज है कैटेगरी मैपिंग, राइट, कि अगर जब तक आपका प्रोडक्ट राइट कैटेगरी मैपिंग नहीं होगा तो जो सेलर है उसको रेलेवेंट लीड्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैटेगरी. एंड तो यहाँ पर वी आर यूजिंग AI टू प्रेडिक्ट द राइट कैटेगरी फॉर अ प्रोडक्ट, राइट. इफ़ इज़ अ ग्लास वेस्ट तो हम आपको बता सकते हैं कि मेरे पास 1 लाख कैटेगरी है तो ये कहाँ पर लिस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट इमीडिएटली, राइट. पहले बहुत टाइम लगता था, उसको देखना पड़ता था, कैटेगरी सब कैट ट्री स्ट्रक्चर होता है कैटेगरी हर उसमें कम, तो ये इमीडिएट हो गया. एंड द एक्यूरेसी इज ऑलमोस्ट 95% देयर. दूसरा मैच मेकिंग में बहुत हेल्प कर रहा है. जैसे हमने बोला कि इफ़ यू सी एक बायर इंदौर का है तो मैं सेलर इंदौर का कैसे कनेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पर AI प्लेज अ बिग रोल, कि वो प्रेडिक्ट कर देता है, रिकमेंड करता है एंड देन अदर कनेक्ट करते हैं. थर्ड, AI वी आर यूजिंग फ्रॉम द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन परस्पेक्टिव, राइट, तो स्पेसिफिकेशन परस्पेक्टिव. तो हम सेलर को गाइड करते हैं कि देखो आपका ये प्रोडक्ट है, तो अगर आपने स्पेसिफिकेशन नहीं है तो रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन ये हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ प्रोडक्ट है. अगर ये मैंने वास्ट को AI के अंदर मतलब स्पेसिफिकेशन के लॉजिक में एल्गोरिथम में प्लेस करें तो ये बता देगा कि इसका स्पेसिफिकेशन ऐसा होना चाहिए. It becomes very easy for the seller to just select the information, and also प्राइस रिकमेंडेशन भी दे देता है कि आपका प्राइस इतने से इतने के बीच होना चाहिए. So that is where we are using AI from the platform perspective. Okay. Now coming from the fintech, right? Fintech में क्या होगा, आपके information, कुछ information देने के बाद like GST and all. So we do some analysis behind, because हमारे पास क्या है कि उस कस्टमर का ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उस कस्टमर का कितने साल से मेरे पास है, 16 years, 15 years, बहुत सारे डेटा हमारे पास है उस कस्टमर. प्लस
the bureau report, we want to get some. So on the basis of that, we are doing some predictability analysis, जिसके basis पे हम उसको बता सकते हैं कि हाँ आपको इतना क्रेडिट तो मिल सकता है, इन पार्टनर से मिल सकता है हमारे, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 10 पार्टनर्स इन प्लेस जिस पार्टनर से मिल सकता है. सो दैट इज़ वेयर वी आर यूजिंग AI. नाउ कमिंग फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव, अब कस्टमर को क्या है कि आज के डेट में उनको भी पता नहीं है कि AI मेरे को यूज़ कहाँ करना है. SME की परस्पेक्टिव, आज के डेट में एक SME का बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर बंदा प्लेटफॉर्म बहुत सारा जगह रजिस्टर्ड है, उसके पास अपना वेबसाइट भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर, लीड्स सब जगह से आता है, और उस बंदे को बिजनेस भी देखना है, इसको लीड भी देखना है, लीड को टाइम पे रिप्लाई भी करना है. एंड ये डिले क्यों होता है? क्योंकि उसने एक बंदा रखा हुआ है कि आपको उसको कॉल करना, पता करना है. अब इट डिपेंड्स ऑन दिस, इसका एफिशिएंसी क्या है, ये बंदा जो CRM का बंदा रखा हुआ कितना जल्दी रिप्लाई करता है. एंड वहाँ पर क्या होता है, एट्रिशन भी होता है, बंदा आया चला गया, एंड बहुत सारे ऐसे में हमारे पास आता है कि ना, जब एग्जीक्यूटिव हम लोग को बोलते हैं सर ये ना बहुत बड़ा कंपनी है या SME है, उनके पास इतना बड़ा टीम है, पर वो ना मेरे को कहता है कि आप ना एक बंदा भी, आपका मेंबरशिप भी लो, एक बंदा भी दे दो जो इस लीड को रिप्लाई करे. सो हियर हमने एक प्रोडक्ट लेके आ गया है, दैट इज AI CRM. It's a two-way conversation which happens. Okay. A bot which does two-way conversation. Very very interesting. तो उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, और उसको इतना अच्छा ट्रेन कर सकते हैं, वो सारे क्वेरीज जो बायर का है वो दे सकता है. इट कैन डू बोथ इनबाउंड कॉल ऑल्सो, आउटबाउंड कॉल ऑल्सो. तो इससे क्या हो गया ना, एंड कॉस्ट इफेक्टिव है. उसको ट्रेन जितना अच्छा करोगे, उसका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन जितना अच्छा दोगे, उतना अच्छा बायर को रिप्लाई करता है. एंड हमने एक पायलट किया, वी डिड अ पायलट, एंड देयर इज़ अ 65% रिस्पॉन्स रेट. जो एक ह्यूमन अगर करेगा तो 50% हो सकता है, बट यहाँ पर 65% इंटरेक्शन हो रहा है, 65% बंदे से बात होकर इन्फॉर्मेशन आ रहा है. That AI CRM is what we are looking at from the customer perspective. Okay. Is it launched? You already launched? Yeah, we are doing a pilot with so many customers today. All right. And third is, we're looking at a product called Office in a Box. Office in a Box, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वी आर ट्राइंग टू यूज़ AI इन सच ए वे दैट कस्टमर को क्या चाहिए आज के डेट में, ईमेल चाहिए, स्टोरेज चाहिए, HRM चाहिए, एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो वी आर बिल्डिंग अ लेयर हाउ वी कैन कम विद अ प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट ये ईजी हो जाए, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड वो रिकमेंडेशन हम कस्टमर को इमीडिएटली दे दें कि ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट, योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज आर द ऑफिस इन अ बॉक्स में इतने सारे प्रोडक्ट्स आप इसको ले सकते हैं, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग AI, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग AI इन आवर कॉल सेंटर नाउ. इनबाउंड के लिए हम वी हैव स्टार्टेड दैट कि ताकि रिस्पॉन्स टाइम कस्टमर के साथ बहुत ईजी हो. एंड देन वी हैव वन मोर system called buyer help desk, where buyer information is being verified. There also we are using the same call bot where the two-way conversation is happening. So a lot of work which is happening on the plan, on a company today from the AI perspective. Yeah. Great. Awesome. So Abhi, let's move to, because you handle a team of 2,000 plus people. Yeah. And because I've gone through that journey of building that team. Yeah. Right? And it requires a lot of learning and a lot of change in your thought process, how to handle teams. So I want to understand from you that what are the key leadership lessons you have learned and which has helped you out in terms of building this team. And I think आपकी केस में जो स्पेशल मुझे लगता है कि I think इसमें एक मेजर पोर्शन होता है जो सेल्स वाले लोग होते हैं. Yeah. And the managing a sales team is very different from managing a service team or a support team. Absolutely. So how do you handle that, and what are the key leadership lessons you have learned and which have been successful for you? I think like you correctly said, out of this 2,000 plus people, almost 1,300 people are sales team. Yeah. And I can proudly say that the median age of my sales team is 5.5 years. Right. Like 5.5 years they are with the organization. Great. That's awesome. That's awesome. And then there are more than 350 people, okay, who are working with us for more than 10 years. Oh, great. Yeah. Right. So first thing which I've learned is lead with empathy, right? अगर आप जो एक कंपनी में जो बंदा काम करता है उसका खाली उसको नहीं, उसका फैमिली मेंबर, उसको पूछो कि हाल चाल कैसे है, उसको अगर हम एक अच्छी तरह से हेल्प करें, उसके प्रॉब्लम्स में सॉल्व करें, उसके प्रॉब्लम्स में, पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करें, तो वो कस्टमर जो हमारे एम्प्लॉय जो है हमारे कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वैल्यू करता है. एंड और जैसे सेइंग ने, अगर आप अपने एम्प्लॉय को खुश रखोगे तो वो अपने कस्टमर को खुश रखेगा. सो लीडिंग विद एम्पैथी इज़ व्हाट आई हैव लर्नड. फर्स्ट थिंग इज़ दैट. सेकंड इज़ एम्पावरिंग द टीम, राइट, कि
अगर आपने उनको बहुत सारी चीज़ें, हम लोग क्या करते हैं कि एज ए लीडर हम बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। नहीं सब कुछ मैं ही करूँगा, ये इससे नहीं हो पा रहा है ना। तो वो हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे लेयर्स बना लिए कि बहुत सारे अप्रूवल्स है, तो अप्रूवल्स हम लोग ज़रूरत ही नहीं है, वो अप्रूवल्स वो ही कैन टेक द डिसीजन, इट्स जस्ट लाइक अ CEO एज अ सर्विस, यू अंडरस्टैंड, CEO एज अ सर्विस, आप ले लो ये डिसीजंस, ये 10 डिसीजंस आप ले सकते हो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वी हैव अ बिग टीम, रेगुलर ट्रेनिंग होता है ताकि हम उनको वो बता पाए कि किस तरह से बात करना है, किस तरह से लीडरशिप ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली सेलिंग, so how to handle people, that empowering is very important. And finally is the culture, right? Culture comes from top to bottom, right? कि आपके ऊपर जब अगर मैं अच्छी तरह से बिहेव नहीं करूँगा, and I always say this is your and important aspect, right? How you speak with your leaders, how you speak with your team, and what you write, right? So culture is very very critical for an organization. If you take care of these three things, अगर तीन चीज़ें ध्यान दें, I think it's very easy to build a high scalable team. Yeah. So क्योंकि हम SME की बात कर रहे हैं और लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो एक SME में एक इशू और आता है कि जब इनिशियल चैलेंजेस होते हैं, यानी व्हेन यू आर इनटू सर्वाइविंग मॉडल, या आप स्केल अप कर रहे होते हो, या आप जब सर्विस करने की कोशिश कर रहे होते हो, जैसे आप उस लेवल पे आते हो कि जहाँ पर आप एक रीजनेबल साइज पे आ जाते हो, तो उसके जो स्केल अप की एस्पिरेशंस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, या हमें लगता है कि इतना टफ है कि यार अभी सब कुछ मैं करता हूँ, जैसे आपने बोला माइक्रो मैनेजमेंट है, और ये SME में बहुत बड़ी चैलेंज है कि वो बहुत दे डू लॉट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, एंड दैट बिकम्स अ बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर देम टू ग्रो. So what is your advice on that? How can they grow, and how can they scale up, and how can they overcome this habit of micromanagement? First thing तो delegation, Right. पहले तो delegate करना पड़ेगा कि कौन सा काम important है, कौन सा काम important नहीं है, because SME का यही सेम चैलेंज है, ईमेल भी मैं देखूंगा, कॉल्स भी मैं ले लूँगा, तो वो ही वांट्स टू बिकम अ सुपरमैन काइंड ऑफ थिंग कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा, तो पहले तो डेलीगेट करें, और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट PPG, व्हाट इज़, पहले तो अच्छे पीपल हायर करें, अच्छे पीपल हायर करें, क्योंकि तभी आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। पीपल हायर करने के बाद एक प्रोसेस बना दें, राइट, बिकॉज इस पीपल को फिर इस प्रोसेस फॉलो करने के लिए तो एकदम प्रोसेस हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज, राइट। एंड फाइनली इज़ द गवर्नेंस, उसको खाली गवर्नेंस करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए कि ये लोग सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये तीन चीज़ें ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली ग्रो। एंड होता क्या है कि SME को ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं ना कि पीपल प्रोसेस ये बड़े कंपनी में ही लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर छोटे में भी होगा आपको स्केल करने में फास्टर होगा, और ट्रस्ट, अपने एम्प्लॉय को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। वहाँ नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ये काम सीख जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, काम सीख जाएगा तो क्या ये अपना बिजनेस ओपन तो नहीं कर लेगा, दैट इज़ अ फेयर। ये बायर का इन्फॉर्मेशन इसके पास जाएगा, ये कंपटीशन के पास लेके जाएगा। बट आई हैव सीन SME जहाँ पर लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, एंड मे बी जब जो हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, राइट, ESOP, तो क्या आप उस एम्प्लॉय को उस आपके बिजनेस के एक पार्ट बना सकते हो क्या? तो आप देखना वो कितना हार्ड वर्क करेगा। तो अगर ये चीज़ें ध्यान दे तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली ग्रो फास्टर, और उसको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है आज के डेट में। अरे एक एलिमेंट जो मुझे लगता है उसमें आप ऐड कर सकते हैं, विच माई एक्सपीरियंस इज एक्सपेक्टेशन सेटिंग। बिकॉज होता क्या कि जब आप डेलीगेट करते हैं तो यू थिंक दैट यू आर हायरिंग समबडी विद रिप्लेसमेंट टू यू, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आपके पास 10 एलिमेंट है, आप उसको एक टास्क के लिए हायर कर रहे हो। तो आई थिंक अगर आपके इंटरनली आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग अगर आपकी राइट है, एंड आई एम हायरिंग दिस पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, so and you revolve around his actions around that thing, I think you'll be more satisfied with what you have been doing. In fact, आप अगर उसको सक्सेस ट्रायंगल के अंदर भी डाल दो ना, अगर सक्सेस ट्रायंगल इज बेसिकली जो मोटिवेशन, क्लियर एंड कैपेबल, राइट। तो अगर वो इंडिविजुअल मोटिवेटेड है, क्लियर है, जो आपने बोला कि गोल, एक्सपेक्टेशन एंड पर्पज, बस क्लियर रखना पड़ेगा, केपेबल, स्किल सेट सही है उसका, ठीक है, क्या वो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर पाएगा, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें है तो खाली उसके बाद आता है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, दैट A2U इक्वल टू सक्सेस, राइट। A2 इज एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन इनटू अर्जेंसी इक्वल टू सक्सेस। तो अगर उसमें एग्जीक्यूशन का पावर है उस बंदे में, ठीक है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज SME के पास आपको मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखना है। तो वो दैट इज़ वेयर आई थिंक अगर ये चीज़ें ध्यान दे, लाइक आई राइटली सेड, एग्जीक्यूशन
is very important, and expectation setting is very important, right? मतलब आपने लाखों बिजनेस के साथ काम किया है एसएमईज के साथ में, तो आप कोई ऐसी स्टोरी बता सकते हैं जहाँ पर किसी एसएमई ने जो जुड़ा हो ट्रेड इंडिया के साथ में, and then he got transformed, which is very close to your heart. You have seen his journey. राइट, ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं इसमें? कोई स्टोरी तो बहुत सारे, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए एसएमई के साथ काम करते हुए। एक दो स्टोरी मैं शेयर कर देता हूँ। एक कंपनी है एन्यू फार्मा, जो कि अहमदाबाद में बेस्ड है, फार्मास्यूटिकल मशीनरी में डील करता है ना। आई ऑलवेज कॉल इट कन्नू भाई, कन्नू पटेल है, कन्नू भाई बोलता हूँ। उन्होंने जब ट्रेड इंडिया से स्टार्ट किया था ना, तो वो हमेशा वही स्टोरी मेरे को भी सुनाते रहते हैं, इसलिए आई एम शेयरिंग दैट स्टोरी ऑल्सो, कि कैटलॉग जो हम कहते हैं वो 15,000 का होता था। कह रहा मेरे पास उस समय वो पैसे भी नहीं थे, ठीक है। और ट्रेड इंडिया ने मेरे को बोला कि आप पहले बनाओ, बाद में देखते, बिजनेस मिलेगा तो विल सी। आज के डेट में ही इज़ डूइंग रियली गुड। उनके पास 2 फैक्ट्रीज हैं फार्मास्यूटिकल मशीनरी में। ही इज़ अ बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री। प्लस उनको इंटरनेशनल बायर्स भी मिल गए आउटसाइड इंडिया। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स बिन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। उसी तरह से एक कंपनी है एप्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, जो मुंबई में है। मिस्टर शाह हैं, ही इज़ लाइक डूइंग मोर देन गुड बिजनेस, गुड बिजनेस। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। इट विल ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो गैस डिटेक्टर्स हो गया, मॉनिटरिंग हो गए, इस तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। जब उन्होंने भी हमारे साथ स्टार्ट किया तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे किया था, और आज के डेट में वो हमारा सुपर बोनांजा, हम कहते हैं कि सबसे बड़ा कस्टमर है, जो हमारे साथ करते हैं रेगुलरली, लास्ट 16 ईयर्स से हमारे साथ जुड़े हुए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टोरीज। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो है साइंटिफाई, ओरी कैम बोल के, मिथिलेश बोल के जो ओनर है, वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाहे आपको कोई भी प्रोडक्ट है। इनफैक्ट आज के डेट में हो सकता है कि आप और मैं बहुत सारे जो स्टार्टअप ब्रांड्स हैं या बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड उनको भी ये जो ब्रांड्स हैं उनको जो कनेक्ट किया वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है उनके पास, राइट। सो these are very interesting stories, and when मैं उनसे मिलता हूँ, when we meet them and we say that hey, देखो ये ब्रांड का मैं बना रहा हूँ, big brands, I don't want to name the brands here, but big brands, they are manufacturing for them, so these are some of the good success stories for the SMEs जिसको हमारे प्लेटफॉर्म से हेल्प में, but there are numerous such stories, just wanted to highlight few of them. Great. एक लास्ट क्वेश्चन है स्पेशली एसएमई को लेके। अब एसएमई में 2 तरह के लोग हैं। एक बिजनेस के अंदर ही एक जनरेशन है जिसने वो बिजनेस एस्टेब्लिश किया, एंड नाउ दे आर क्रॉसिंग द एज ऑफ 55 प्लस 60, उस रेंज में चलता है। एक जो सेकंड जनरेशन उनकी या थर्ड जनरेशन जो है, जो अभी अर्ली 30s में होगा या 20s में होगा, राइट। अब उनका जिन्होंने वो बिल्ड किया, उनका एक बिलीफ सिस्टम है, उनका एक लर्निंग प्रोसेस है। ये लोग हैं वो एक तरफ देखते हैं कि हाउ देयर पेरेंट्स और देयर फैमिलीज हैव बिल्ड दोज बिजनेसेस, एंड सेकंड नाउ एक हमारे यहाँ पे आजकल स्टार्टअप कल्चर बड़ा है, राइट। सो व्हाट वुड बी योर पीस ऑफ एडवाइस टू बोथ दिस जनरेशन टू टेक देयर बिजनेसेस फ्रॉम वेयर दे आर टू नेक्स्ट लेवल? फर्स्ट थिंग इज जो पुराने जनरेशन है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, राइट। इट्स नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज उनको ये लगता है एक्सपेंस है। सेकेंड, न्यू जनरेशन को ये कि उनके पास अभी बहुत सारे टूल्स है। अगर आप देखें इतने सारे टूल्स हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टूल्स यूज़ करूँ, सो सेलेक्टिंग द राइट टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज सेलेक्टिंग द राइट प्लेटफॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड इज़ कि आपको प्लेटफॉर्म में होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं होंगे तो आपका बायर जो है वो ऑनलाइन है आज के डेट में, और वो बायर अगर आपके पास नहीं आएगा तो किसी और के पास जाएगा। आपके कंपटीशन शायद ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, आप पीछे हो जाएंगे। थर्ड, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी इन्वेलमेंट क्या होता है, वो आपको फ्यूचर प्रूफ करता है कि आपके फ्यूचर रेडी हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप जैसे एज यू सेड लाइक AI आ गया, ML आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है ना। तो उस जगह टेक्नोलॉजी जो स्टेबल रखना और किस राइट टूल यूज़ करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। जो यंग जनरेशन है वो क्या है कि उनको रिजल्ट बहुत स्पीड में चाहिए, कि उनको आज इट्स जस्ट लाइक लाइक्स का ज़माना है, राइट, और स्क्रॉल का ज़माना है, सो
बी पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा. यू माइट फेल, रेडी टू फेल, लर्न फ्रॉम दैट फेलियर. ओके. और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, प्रोडक्ट बना रहे हो, वो देखो कि वो प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हो या कस्टमर के लिए बना रहे हो. तो आप क्या करना चाहिए कि आपके पास कस्टमर के पास जाना चाहिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेना चाहिए कि आज $1 बिलियन प्रॉब्लम पड़ा हुआ है मार्केट में, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आसपास ही पड़ा होगा, राइट. उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को बनाओ और उसको बनाने के बाद उसमें काम करो, एंड टेक द लर्निंग. नेक्स्ट इज जो मैंने देखा है यंग जनरेशन में कि उनको जो प्रोडक्ट बनाता है उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है. जब तक परफेक्ट नहीं हो जाए उसको मार्केट में नहीं ले जाएंगे, है ना. सो मेरा सजेशन होगा कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, राइट, मार्केट में आप ले जाइए, ले जाके कस्टमर का फीडबैक लीजिए. कस्टमर फीडबैक में उसमें चेंजेस, इटरेशन ले आइए, चेंजेस ले आइए एट द फीडबैक, एंड देन यू गो ऑल आउट, राइट. एंड मे बी ट्राई ना स्मॉलर स्केल. अगर आप नोएडा पे स्टार्टअप हो, ट्राई करो कि नोएडा पे ही पहले प्रॉब्लम सॉल्व. डोंट गो कि मैं आज पूरा ग्लोबली एकदम आज मैंने प्रोडक्ट बना दिया, अब तो मैं पैन इंडिया और सब जगह लेके जाना चाह रहा हूँ. सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई वुड सजेस्ट, अगर ये यंग जनरेशन है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है. ग्रेट सर, थैंक यू. आई थिंक काफ़ी यूजफुल रहेगा लोगों के लिए, बिकॉज काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दो जनरेशन जब साथ में काम कर रही होती हैं. अब क्योंकि हमारा टाइम कम है और आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना है, सो हमने छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड बनाया हुआ है. सो विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर इन वन वर्ड और वन लाइन, आई थिंक, सो दैट वी कैन गेट मोर वैल्यू फ्रॉम यू इन शॉर्ट टाइम. पहला मेरा क्वेश्चन है दैट बिजनेस और टेक्नोलॉजी, व्हाट एक्साइट्स यू मोर? Technology always. Okay, great. And first thing which you do every morning? From gratitude, and also I always believe that if you're healthy inside, you're healthy outside, right? तो yoga हमेशा करता हूँ every day, 45 minutes. Without that, I don't start my day. And one book which every entrepreneur must read? Two, I would say two. One is Atomic Habits. Why Atomic Habits? Because small habits can make a big difference. Wonderful And book, second is Scaling Up. Why I say Scaling Up? कि लोगों को लगता है कि सेल्स करने से ही बिजनेस ग्रो कर सकता है, बट उसके पीछे गुड लीडरशिप, कोलैबोरेशन, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज दे सकता है. द बेस्ट बिजनेस डिसीजन यू हैव एवर मेड? आपको लगता है ये डिसीजन मेरा बेस्ट था? पैंडेमिक में एक डिसीजन मैंने लिया था कि हमने DSA और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बोल के एक प्रोग्राम रन किया था. वेयर मोर देन 1000 पीपल ज्वाइन किया उसमें, एंड वी स्टार्टेड जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम देम. So I think that's what the great business strategy which I feel had helped us. Any startup or business which you admire a lot, which has been built in last couple of years? Zerodha. Why I say Zerodha? Because one, bootstrapped, profitable, great leadership, Nikhil and Nitin. Ethical leadership, I would say. Absolutely. And helping the ecosystem. Using their platform. Renmedia. Right. And what keeps you awake at night? Something which I can do more disruptive in the SME ecosystem. अभी I think अभी मैंने काफ़ी सारे अचीव कर नहीं पाया, और बहुत सारी चीज़ें SME को हेल्प करने के लिए और डिजिटल सक्षम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी और बनाना है. आई थिंक वो सोचते ही कभी कभी लगता है कि इंडिया में 63 मिलियन SMEs है, 35% और 37% आर डिजिटली कनेक्टेड, एंड ट्रेड इंडिया में अभी भी 1 करोड़ 11 मिलियन ही SMEs है. तो लॉन्ग वे टू गो, राइट. So I think this always gives me awakening when I think about it. Yeah. Right. Okay, and if not Trade India, what you would have been doing? I think I would have been in army, serving the country. Okay, great. And one dream project which you would love to work on? I think social commerce. Why I say social commerce? अभी मैं काफ़ी सारी जगह विजिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि छोटे शहर में आर्टिजन्स हैं, और ये आर्टिजन्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उनके प्रोडक्ट का वैल्यू अभी तक मिला नहीं है जिस तरह से उनको मिलना चाहिए. वेरी ऑथेंटिक, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट. बट उसी तरह से बहुत सारे ब्रांड्स बन चुके हैं उसी डायरेक्शन, बट दे आर डूइंग देयर ओन प्रोडक्ट, राइट. आई थिंक एक इकोसिस्टम बनना चाहिए जहाँ पर इस आर्टिजन्स को एक जगह लेके आके उनकी स्टोरी बता के उन प्रोडक्ट को ग्लोबल लेके जाना है. आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक future if I have to work, I'll work on this. Yeah. I think very thoughtful idea, and I think very noble cause. Yeah. And I wish you will be able to do that soon. Yeah. And thank you, sir. Thank you for coming and sparing time and giving us so much insights about SME and how they can actually grow faster. So thank you once again. Okay, thanks, Divak. Thank you for that. Yeah, thank you very much.